Good morning, viewers. And today we are coming to an end of this Medichit Chat season, and we are very honored to have with us Dr. Richa Bansal, madam, with us, and she's a very senior gynec oncologist. मैम हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे इस पे, बट बिफोर वी बिगिन टॉकिंग अबाउट कि ब्लीडिंग जो पेशेंट्स हैं जिनका पीरियड चला जाता है और उनमें जब ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आती है, बिफोर दैट आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Good morning, ma'am. And I'm really very honored, and it's my pleasure to be here with you on this MediChit Chat show. I am Dr. Richa Bansal, and I'm a consultant gynec oncosurgeon and laparoscopic surgeon practicing here in Navi Mumbai. I'm a female cancer specialist surgeon, and my areas of expertise are treating and performing surgeries for cancer of the ovary, cancer of the uterus, cervix, vagina and vulva, basically female reproductive organs. And I have special interest in treating young women with gynecological cancers. And as we all know that preserving fertility in young girls with these cancers is an important issue. Correct. I have, after my MS in Obs and Gynec from Sion Hospital, I have trained in gynec cancer surgery from the Tata Memorial Hospital, Parel, where I've done MCH gynecological oncology, and I've worked in Tata Memorial Hospital for 6 to 7 years. So how many years that you have been practicing, Dr. Richa? Ma'am, it's been 10 to 11 years. Long time. It's such a pleasure and honor to, be able to ask few questions जो हमारे लोगों को बहुत I'm sure कि उनको बहुत हेल्प करेगा. अभी क्या होता है ना कि जो विमेन होती हैं, स्पेशली जो मेनोपॉज के आसपास आने लगती हैं, आप कब कहते हैं कि अब ये ब्लीडिंग जो है ये अबनॉर्मल हो गई है? क्योंकि हर पर्सन की तो साइकिल अलग होती है. हर पर्सन का पीरियड जाने का पैटर्न भी अलग होता है. तो आप सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताएं कि कब उन्हें किसी गायनेक या अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए. यस, सो कोई भी महिला जिसका मेनोपॉज हो चुका है, मेनोपॉज मीनिंग when she has stopped her periods for 12 months. अच्छा. So any abnormal bleeding happening after 12 months of stopping her periods, that is menopause, is definitely abnormal, and she should see her gynecologist. Now, before menopause, or any lady who has not yet achieved menopause, if she notices any change in her menstrual pattern, like suppose before 6 months her cycles were regular 3 to 4 days a month, and with moderate blood flow using 2 to 3 pads a day, and if she notices that in last 6 months her bleeding has been lasting for almost 6 to 7 days with lots of passage of clots and lots of bleeding, and if she's requiring to change multiple pads in a day, then definitely this is a change in pattern which shouldn't have been there. And this is when definitely she should not ignore her symptoms and should visit her gynecologist. So if we put in simple language किसी नॉर्मल पर्सन को समझने के लिए, तो अगर पीरियड साल भर से चला गया है और फिर किसी भी तरह की ब्लीडिंग होती है तो इट इज़ नॉट नॉर्मल. उसको ज़रूर डॉक्टर से दिखा लें. और दूसरा ये है कि अगर आपको नॉर्मल ब्लीडिंग रेगुलरली होती थी, उसमें कोई बहुत मेजर पैटर्न में बदलाव हो गया हो और अगर वो हेवी साइड में चला गया हो, तो फिर तो भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर मिलें. यस, हेवी साइड में चला गया हो या फिर ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहा अच्छा. है, महीने में 2 बार आ रहा है, और आफ्टर मेनोपॉज तो इवन अगर स्पॉटिंग भी है, इवन अगर एक सिंगल एपिसोड है, इवन दैट इज नॉट नॉर्मल. वी कैनॉट वेट दैट ओके लेट मी हैव हेवी ब्लीडिंग, या सिर्फ जो ब्लीडिंग ठीक ही नहीं हो रही है, महीनों चल रही है, या हेवी ब्लीडिंग है, बस वही एबनॉर्मल है. सिंगल एपिसोड ऑफ स्पॉटिंग इज ऑल्सो एबनॉर्मल. एक कंसर्न था बीइंग अ गायनेक कि बहुत बार क्या होता है, पेशेंट्स जो है ना वो उनको आदत रहती है, हमारी ब्लीडिंग तो हेवी ही रहती है, हमको तो थायराइड की प्रॉब्लम ही है. तो ऐसे औरतों में आपका क्या रिकमेंडेशन रहेगा जिनको हमेशा से ही हेवी ब्लीडिंग रही है? तो इसमें तो शायद हम लोग मिस भी कर जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा. तो मैम एक तो है कि चेंज ऑफ पैटर्न, जो उनका रेगुलर पैटर्न है अगर उससे स्लाइट वेरिएशन है,
और दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी अगर ऐसा सस्पिशन भी आता है तो एक अल्ट्रासाउंड ऑफ द पेल्विस हमेशा करा लेना बेहतर है. इफ इट इज़ नॉर्मल देन वेरी वेल एंड गुड, एंड इफ इट इज़ एबनॉर्मल देन एटलीस्ट वी विल बी एबल टू pick up something early and we can evaluate it in that direction. ऑलराइट, मतलब आजकल तो अल्ट्रासाउंड बहुत इजीली हर जगह अवेलेबल है, तो कुछ भी अगर चेंज है पैटर्न का तो तुरंत एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर मिल लें. यस, इग्नोर करने से अच्छा है एक अल्ट्रासाउंड तो बेसिक टेस्ट है, हमेशा कर लेना बहुत और आजकल एनुअल पैकेजेस में तो ये शायद Included पार्ट है. भी रहता ही है Yes, करने के yes. लिए. इसके अलावा ये तो हमारा पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग स्पेसिफिक हो गया यूट्रस की तरफ. और कुछ अगर एक छोटे में सिंपल में बताना चाहें आप, जो थोड़ा कैंसर सर्विक्स को भी थोड़ा सा अगर लाइट करेक्ट. जस्ट Yes, कुछ yes. इम्पॉर्टेंट वार्निंग साइंस या पॉइंट्स ऐसे. Yes. नहीं, डेफिनेटली मैडम, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग सिर्फ यूट्राइन कैंसर के लिए ही नहीं, सर्वाइकल कैंसर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. हमारी प्रैक्टिस में सपोज अगर हम 100 पेशेंट्स अगर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ देखेंगे तो डेफिनेटली जो बिनाइन रीजंस हैं, नॉन कैंसरस, तो वो 70% लोगों को कुछ ऐसा मेजर कैंसर ऐसा नहीं निकलेगा, बट डेफिनेटली 30% लोगों को हमारी स्पेशली हमारी कंट्री में कैंसर निकलने की आशंका है. और इनमें से सर्वाइकल कैंसर मेजर वजह है. सो सर्वाइकल कैंसर के भी सिम्टम्स यही हैं कि अगर मेनोपॉज के बाद, अगर किसी भी समय 3 साल बाद, 4 साल बाद किसी को भी अगर कुछ भी तरीके का एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रहा है, या कभी कभी ब्लीडिंग नहीं होता है, डिस्चार्ज होता है, वजाइनल डिस्चार्ज है, सफ़ेद पानी जा रहा है, या कभी कभी ब्लड में हल्का सा वो मिक्स्ड रहता है, ऐसा कुछ भी डिस्चार्ज है, लोअर एब्डोमेन में पेन है जो नहीं रहना चाहिए, कुछ भी यूरिनरी प्रॉब्लम है. कभी कभी कुछ पेशेंट्स हमारे पास रिकरेंट यूटीआईज के साथ भी आते हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन जो नॉर्मल एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो रहा है, कभी कभी उसकी वजह से भी आते हैं. और अगर ज़्यादा एडवांस्ड प्रॉब्लम है, अगर सर्वाइकल कैंसर बहुत समय तक किसी ने अपने सिम्टम्स इग्नोर किए हैं, तो यूरिन रिटेंशन हो गया, यूरिन पास करने में प्रॉब्लम है, स्टूल्स पास करने में प्रॉब्लम है, ये सब तो मतलब सिर्फ ब्लीडिंग ही नहीं, ये छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स है, आपको बार बार यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, या मोशन करने में तकलीफ हो रही है, या वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, स्मेल आ रही है, कुछ भी इसमें से इग्नोर ना किया जाए. ठीक है. अगर ये पेशेंट एक बार आपके पास आते हैं तो नॉर्मली इनका आप चेकअप किस तरह से प्लान करते हैं? यस, तो सबसे पहले तो वही हिस्ट्री हम लोग पूरा पूछते हैं डिटेल में कि उनको किस तरह की प्रॉब्लम है, कितने समय से हो रही है. सबसे जो बेसिक एग्जामिनेशन है वो हम लोग ओपीडी में ही करते हैं, जिसको हम लोग पेल्विक एग्जामिनेशन कहते हैं. इन दैट वी सी वेदर देयर इज एनी ग्रोथ और एनी एबनॉर्मेलिटी सीन ऑन द सर्विक्स और वजाइना. करेक्ट. अगर सर्विक्स और वजाइना नॉर्मल दिख रहे हैं तो हम लोग ज़्यादातर एक पैप स्मेयर हम लोग ले लेते हैं, सो दैट वी कैन स्टडी द स्मेयर अंडर द माइक्रोस्कोप टू सी इफ द सर्वाइकल सेल्स आर नॉर्मल और एबनॉर्मल. एंड ऑफ कोर्स इफ कुछ ग्रोथ अगर ऐसे दिख रहा है तो मोस्ट कॉमनली हम लोग ओपीडी में ही एक बायोप्सी ले लेते हैं, जिससे ऑफ कोर्स डायग्नोसिस क्लियर हो जाता है. नेक्स्ट स्टेप है एक अल्ट्रासाउंड पेल्विस कराना. उससे हम लोग को यूट्रस की जो थिकनिंग होती है, यूट्रस की जो लाइनिंग है वो थिकन्ड तो नहीं है, या और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं. कभी कभी यूट्रस में पॉलिप्स हो सकते हैं. पॉलिप्स बिनाइन ग्रोथ्स होते हैं, कैंसर नहीं है, मतलब छोटी सी गांठ है जो बच्चेदानी के अंदर है. यूजुअली 1-2 सेंटीमीटर की गांठ रहती है बच्चेदानी के अंदर, या बच्चेदानी के मुंह जो जिसको हम लोग सर्विक्स कहते हैं उसके अंदर, वहाँ भी हो सकता है. वो भी काफ़ी कॉमन वजह है ऐसा एबनॉर्मल ब्लीडिंग देने का. तो अल्ट्रासाउंड में ऑफ कोर्स हमको वो यूट्रस की लाइनिंग थिकन्ड है कि नहीं वो पता चल जाएगी. पॉलिप्स हैं, सर्विक्स में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, दूसरा हम लोग ओवरीज को भी दे सकते हैं. रेयरली फ्यू काइंड ऑफ ओवेरियन ट्यूमर्स वो ईस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं, और वो ईस्ट्रोजन यूट्रस की लाइनिंग पे एक्ट कर सकता है, और जो यूट्रस की जो लाइनिंग है उसको थिकन्ड बना सकता है. और अगर वो लंबे समय तक अगर ऐसा ओवेरियन ट्यूमर डायग्नोसिस नहीं हुआ है तो उसमें यूट्रस का कैंसर भी डेवलप होने की रिस्क ये रहती है. एक मुझे जानना था डॉक्टर चा कि बहुत बार क्या होता है ना, हम जब पेशेंट को बोलते हैं कि आपका हम स्पेशली अगर हिस्ट्रोस्कोपी डीएनसी या ऐसी इस तरह का कोई, आपने जैसे बताया कि ओपीडी लेवल पे बायोप्सी करना है तो पेशेंट आर क्वाइट ओके, क्योंकि वो कंसल्टिंग तो कराने आए ही हैं तो बायोप्सी ले लिया. लेकिन अगर हम उनको कहेंगे कि हम कोई बायोप्सी के लिए अगर हमको एडमिशन लगता है, या एक दिन आपको मतलब सवेरे एडमिट होकर दोपहर या शाम तक रहना पड़ेगा, तो उनका
पहला ये रहता है, मैडम जी एक ही साथ यूट्रस और सब निकाल क्यों नहीं देते, बच्चेदानी ही निकाल दीजिए। तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि हम एक डायग्नोसिस तक पहुंच जाएं। मैम एक्सीलेंट क्वेश्चन, बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट है हमारे दर्शकों को ये समझना कि हम लोग को सिर्फ ब्लीडिंग का ट्रीटमेंट करना सफिशिएंट नहीं है। ब्लीडिंग किस वजह से है वो बीमारी का डायग्नोसिस पहले करके और फिर अकॉर्डिंगली हम लोग को उसको ट्रीट करना है। तो अल्ट्रासाउंड करने के बाद सपोज अगर यूट्रस में कुछ भी प्रॉब्लम दिख रहा है तो सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप उसका बायोप्सी ही होना चाहिए। बायोप्सी हमको ये बताएगा, जो आप कह रहे थे अभी हिस्ट्रोस्कोपी गाइडेड बायोप्सी यूजुअली करते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी मतलब एक छोटा सा कैमरा हम लोग थ्रू वजाइना हम लोग यूट्रस के अंदर लेके जाते हैं विदाउट एनी कट ऑन द टमी, और उसके ज़रिए हम लोग देख सकते हैं कि यूट्रस के कैनाल में, सर्वाइकल कैनाल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग उसको निकाल सकते हैं। सपोज कुछ पॉलिप ही हुआ तो वही उसका इलाज भी वही हो जाता है, एक ही साथ हो जाता है। उसके बाद तो इनफैक्ट आपको यूट्रस निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। और सपोज अगर कुछ कैंसर का अगर शक निकलता है, अगर वो बायोप्सी में अगर कैंसर है तो उसका सर्जरी कैंसर सर्जरी के हिसाब से होना चाहिए। सिर्फ सिंपल रिमूवल ऑफ यूट्रस एडिक्वेट नहीं है, वो इलाज इनकम्प्लीट है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि वो डॉक्टर के पास गए क्योंकि उनको हेवी ब्लीडिंग था और उन्होंने वो इंसिस्ट किया कि नहीं हमको ये बायोप्सी नहीं कराना, बस आप बच्चेदानी निकाल दीजिए और हम सब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद जब वो टेस्टिंग के लिए जाता है और उसमें ये डायग्नोसिस आती है यूट्राइन कैंसर, तो वो एक बहुत ही दुविधा में डालने वाला एक्चुअली सिचुएशन है कि एक तो सर्जरी एक बार हो गया है वो भी इनकम्प्लीट हुआ है, उसको फिर से ऑपरेशन बताएं। आइडियली उसका फिर से ऑपरेशन करके सारे जो लिम्फ नोड्स हैं वो भी निकालना जरूरी है। तो मैडम एक्चुअली कैसे है कि कैंसर सर्जरी नॉर्मल सर्जरी से अलग कैसे है? कैंसर सर्जरी में जो ऑर्गन में प्रॉब्लम है वो भी निकालना है और जहाँ पे ये कैंसर स्प्रेड होने की आशंका है वो भी निकालना है। तभी हमको पता चलेगा कि ये कैंसर स्प्रेड तो नहीं हुआ या हुआ है, जिसको नॉर्मली हम स्टेजिंग वाला कह देते हैं। सर्जरी हम लोग इसको स्टेजिंग सर्जरी कहते हैं। उससे पता चलेगा कि कहाँ तक है और इसमें आगे फिर किस तरह का इलाज और चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे पेशेंट्स इंसिस्ट करते हैं कि आप बस यूट्रस निकाल दीजिए, उन्हें लगता है प्रॉब्लम तो ब्लीडिंग का है तो बायोप्सी में क्यों। और आजकल थोड़ा सा कॉस्ट फैक्टर, लेकिन ये समझने की बात है कि उससे कॉस्ट आपका और बढ़ ही जाएगा अगर कॉम्प्लिकेशन हो गया तो। ठीक, और वो इलाज भी डिले हो जाता है। और आपके लिए भी टेक्निकली आई थिंक वो सर्जरी जो एक बार हो चुकी है उसमें फिर से रिपीट करना थोड़ा टेक्निकली डिफिकल्ट हो जाता है। फर्स्ट सर्जरी क्लीन कट सर्जरी और ये यूट्राइन कैंसर की सर्जरी मैडम आजकल हम लोग बाई लेप्रोस्कोपिक एंड बाई रोबोटिक रूट कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। और उससे हमको मतलब जो इन्वॉल्व पार्ट्स हैं वो भी निकल जाते हैं, हमको प्रॉपर एक स्टेजिंग रिपोर्ट हमको मिल जाती है, डायग्नोसिस हमको मिल जाती है कि किस स्टेज में वो कैंसर है और अकॉर्डिंगली हम लोग उसका आगे इलाज कर सकते हैं। कई बार इसमें रेडिएशन देना इम्पॉर्टेंट है। अगर कुछ स्टेज में सपोज लिम्फ नोड्स में अगर बीमारी पहुंच गई है तो उसमें कीमोथेरेपी और रेडिएशन दोनों की ज़रूरत है। और आगे अगर सही तरीके से ये ट्रीटमेंट हो तो प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है, उसका सर्वाइवल बहुत अच्छा है। तो कुछ भी इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि हम लोग डायग्नोसिस क्यों करें, हम तो सिर्फ यूट्रस निकाल देंगे तो हमारी प्रॉब्लम समस्या का हल हो जाएगा, वैसा नहीं है। सही हम लोग अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर हम सिस्टमैटिक अप्रोच से इसकी तरफ जाते हैं इसके मैनेजमेंट में तो बिनाइन निकला तब तो कोई इशू ही नहीं है। और अगर मेलिग्नेंसी निकली तो हमने कोई भी स्टेप को बीच में कट नहीं किया, हमने बराबर से उसको किया, सो दैट सर्वाइवेबिलिटी और ट्रीटमेंट भी बहुत बेटर हो सकता है, बेहतरीन हो सकता है। हमको अगर आउटकम अच्छा चाहिए तो डेफिनेटली हमको इलाज भी बिल्कुल सही तो बायोप्सी का स्टेप कभी भी नहीं करना, सामने वाला कहे भी तो भी बिना बायोप्सी के आप अपनी सर्जरी ना कराएं तो सही रहेगा। ठीक है, अभी मुझे एक जनरल, मुझे नहीं पता कि उसको सादे शब्दों में हम कैसे अपने दर्शकों को कन्वे कर पाएंगे, लेकिन जब आप बायोप्सी करते हैं तो आपको नॉर्मली मेलिग्नेंसी में किस तरह की रिपोर्ट का एक्सपेक्टेड रहता है, आप एक्सपेक्ट करते हैं, और उसमें से किस तरह का प्रोग्नोसिस होता है? मतलब ऐसा कुछ है क्या जो आपको लगता है कि अरे ये वैरायटी का आया तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ट्रीटमेंट के लिए? तो ब्रॉडली स्पीकिंग यूट्रस में जो कैंसर होता है उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2।
टाइप 1 मेडिकल लैंग्वेज में वी कॉल इट एंडोमेट्रियोइड अडीनोकार्सिनोमा। जो ये एंडोमेट्रियोइड अडीनोकार्सिनोमा है, इसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। ज़्यादातर महिलाओं में जब हम इसको डायग्नोस करते हैं तो वो लिमिटेड डिजीज़ में ही डायग्नोसिस उसका हो जाता है, बहुत जल्दी स्प्रेड नहीं होता है, एंड द ट्रीटमेंट आउटकम और सर्वाइवल इज़ वेरी गुड। टाइप 2 कैंसर जो होता है वो होता है यूट्राइन पैपिलरी सीरस टाइप क्लियर सेल, और एक है कार्सिनोसार्कोमा टाइप। तो अगर टाइप 2 कैंसर है वो थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेवियर उसका रहता है। काफ़ी टाइम हम लोग देखते हैं कि इवन मतलब कुछ समय से ही ब्लीडिंग है, और जब हम लोग उसको डायग्नोस करते हैं और अगर वो टाइप 2 का निकलता है तो काफ़ी हद तक चांस है कि वो ऑलरेडी स्प्रेड हुआ हमको मिलेगा। अच्छा। तो कंप्लीट सर्जरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिमूवल ऑफ ऑल द लिम्फ नोड्स इज़ वेरी। तो मुझे ये लगा कि जो हमने अभी इसके पहले बात किया कि बायोप्सी क्यों ज़रूरी है, ये और भी ज़रूरी है कि किस तरह का अगर परेशानी है तो वो किस तरह की परेशानी है, और जिसमें एक पूरी टीम अप्रोच के साथ हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करें कि अगर कीमो लगे या रेडिएशन लगे तो हमने हर तरह से आपके लिए एक प्रॉपर टेलर मेड परफेक्ट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट प्लान किया है। मैडम ये बायोप्सी में भी ये किस टाइप का कैंसर है, अगर हमको ये सर्जरी करने से पहले ही अगर हमको ये पता है तो हम लोग सर्जरी में भी काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन हमको कर सकते हैं। अच्छा। अगर गुड प्रोग्नोसिस है तो हम उतना सर्जिकल एक्सटेंट भी फिर हमारा लिमिटेड रह सकता है, हमको बहुत ज़्यादा मेजर एक्सटेंट तक जाने की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट। इट विल नॉट गिव द पेशेंट एनी बेनिफिट। राइट। वर्सेस अगर टाइप 2 मेलिग्नेंसी है देन डेफिनेटली लिमिटेड सर्जरी करना हेल्पफुल नहीं है। देन वी हैव टू गो क्वाइट रेडिकल एंड वी हैव टू रिमूव इवन द हायर लिम्फ नोड्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मतलब सर्जरी का पूरा प्लानिंग ही चेंज हो जाता है रिपोर्ट के बेसिस पे। अभी अब मैं ये जानना चाहती थी कि अगर कोई पेशेंट को मेलिग्नेंसी आती है, कैंसर बच्चेदानी का, वी विल लिमिट दिस टॉक ओनली टू सी एंडोमेट्रियम या यूट्राइन कैंसर, तो किस तरह से मतलब उनको नॉर्मली सर्जरी के लिए कितना टाइम हॉस्पिटल में रहना पड़ता है और उनकी रिकवरी कैसी रहती है? सो यूट्रस कैंसर की सर्जरी हम लोग ओपन रूट से भी कर सकते हैं और लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक, जिसको हम लोग की होल सर्जरी कहते हैं, उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। केस सिलेक्शन, किस पेशेंट में ओपन सर्जरी बेहतर होगी, किस पेशेंट में की होल सर्जरी बेहतर होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर हम लोग ये आइडियल ट्रीटमेंट सेलेक्ट करते हैं। सपोज अगर किसी पेशेंट को हमारा मानना है कि ओपन सर्जरी ज़्यादा बेहतर होगी, तो नॉर्मली 1 डे बिफोर सर्जरी एडमिट हम लोग करते हैं। फिर आज सपोज अगर सर्जरी है तो 4 से 5 दिन में यूजुअली पेशेंट कम्प्लीटली रिकवर होके डिस्चार्ज कर सकते हैं। वी डिस्चार्ज वंस द पेशेंट इज ऑन ऑलमोस्ट बिफोर प्री सर्जरी बहुत एक्सटेंडेड नहीं है, विद इन अ वीक, अगर एक वीक की तैयारी से आए पेशेंट तो ओपन सर्जरी में भी इतना टाइम सफिशिएंट रहता है। और अगर आपने जो दूसरा बताया कि लैप्रोस्कोपी है या फिर रोबोटिक्स है तो उसमें कितने दिन का स्टे रहता है? उसमें मतलब 3rd डे भी हम लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं। 2-3 दिन ओपन सर्जरी के मुकाबले हम लोग 2-3 दिन पहले उनको डिस्चार्ज कर पाएंगे। और कंफर्ट लेवल क्या रोबोटिक्स में या लैप्रोस्कोपी में बहुत फर्क है, मतलब ओपन वर्सेस अगर हम ये लैप्रोस्कोपिक, तो थोड़ा बहुत फ़र्क डेफिनेटली है। पेशेंट को पेन कम होता है, पेशेंट जो अपनी नॉर्मल रूटीन जो दिनचर्या है वो की होल सर्जरी में जल्दी वापस आ जाती है, और पेशेंट डाइट भी वो जल्दी हम लोग उसको शुरू कर पाते हैं, डिस्चार्ज भी हॉस्पिटल से जल्दी शुरू कर पाते हैं। और उसके बाद पेशेंट अपने रेगुलर, सपोज इफ शी इज़ वर्किंग, पेशेंट अगर वर्किंग है तो वो अपना जो वर्क है वो भी ओपन सर्जरी के मुकाबले जल्दी शुरू कर सकते हैं। ओपन सर्जरी में थोड़ा सा ये सब फैक्टर्स में डिले हो सकता है, बट अगेन आई विल स्ट्रेस अपॉन दैट केस सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग की होल सर्जरी का बेनिफिट दे सकते हैं हम लोग डेफिनेटली देंगे, और जिनका हमको ओपन सर्जरी सही लगेगा उसका ओपन ही ये करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एम जो है वो है ऑन्कोलॉजिकल आउटकम। कैंसर से हमको अच्छा सर्वाइवल हमको चाहिए, सो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट रेदर देन दीज। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा ना कि कभी कभी ये भी कंसर्न रहता है कि ऐसा तो नहीं कि लैप्रोस्कोपी से हम थोड़ा अपना सर्जिकल जो ये है वो लिमिट कर देते हैं,
तो आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में क्या लगता है, अगर कोई पेशेंट है जिसको आपको दोनों आप इक्वली कर सकते हैं, आप ओपन भी कर सकते हैं और लेप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं, तो क्या ऐसे पेशेंट्स में ओपन सर्जरी का आउटकम सर्जिकल स्किल वाइज थोड़ा बेटर रहता है या लेप्रोस्कोपी भी उतना ही अच्छा है? लेप्रोस्कोपी भी हम लोग तभी एडवाइस करते हैं जब पूरा सर्जरी अच्छे से लेप्रोस्कोपिकली कंप्लीट हो सकता है। ऑल राइट। तो टेक्निकली हम उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं अगर है। आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है कि ये सर्जरी दोनों तरह से हो सकती है, तो दे कैन फ्रीली चूज। ऐसा नहीं है कि Yes. ओपन या इसमें कोई Yes. खास बेनिफिट, और अगर वो हो नहीं पाएगा तो आप लोग सामने से ही कह देंगे कि इनको बिल्कुल। आप लेप्रोस्कोपी ना करें, या जो भी Yes. वॉट एवर विल बी योर Yes. Yes. अप्रोप्रिएट एडवाइस फॉर दैट Yes. पर्सन। Yes. ऑल राइट। और इसमें आगे अगर बाई चांस ये स्प्रेड ज़्यादा रहता है तो आगे किस तरह के एडजुवेंट थेरेपीज या आगे क्या आप नॉर्मली यूट्राइन कैंसर के लिए आप लोग देते Yes. हैं? सो जो सर्जरी के जो बाद का ट्रीटमेंट है उसको हम लोग एडजुवेंट ट्रीटमेंट कहते हैं। एडजुवेंट ट्रीटमेंट प्लानिंग होती है जब पेशेंट की पूरी सर्जरी की जो पूरी रिपोर्ट, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट जब आती है उसके ऊपर, तो उसमें सिर्फ यूट्राइन कैंसर होना सफिशिएंट नहीं है। बहुत सारे माइनर डिटेल्स हम लोग देखते हैं कि किस टाइप का यूट्राइन कैंसर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक आई सेड, टाइप 1 एंड टाइप 2, ट्यूमर का साइज कितना है, यूट्रस की इनर लाइनिंग में ये कैंसर अराइज हो सकता है। जो इनर लाइनिंग है दैट इज सराउंडेड बाय यूट्राइन मसल विच इज कॉल्ड मायोमेट्रियम। तो जो यूट्राइन कैंसर है वो यूट्रस की मसल में कितना ज़्यादा इन्वेड कर रहा है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और ट्यूमर ऑफ कोर्स लिम्फ नोड्स में स्प्रेड है या नहीं। और काफ़ी सारे हम लोग स्पेशल मॉलिक्यूलर टेस्ट्स भी करते हैं। आजकल काफ़ी सारे एडवांसमेंट्स आए हैं जो हम टिश्यू सैंपल्स पे भी करते हैं, उनको हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो उससे भी हमको काफ़ी हद तक ये आइडिया लगता है कि ट्यूमर किस टाइप का है और आगे वो कितना एग्रेसिव या लेस एग्रेसिव वो बिहेव करने की आशंका है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग आगे का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। Stage 1 uterine cancer means when the cancer is limited to the uterus itself. तो but if it is showing some aggressive features like अगर मसल इन्वेजन बहुत ज़्यादा है, ट्यूमर का साइज बड़ा है, तो सर्जरी के बाद प्रोफिलैक्टिकली हम लोग उनको रेडिएशन देते हैं। और ये रेडिएशन भी कुछ लोगों को एक्सटर्नल और इंटरनल रेडिएशन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें से भी जो अर्ली स्टेज है या जिनमें रिस्क फैक्टर्स अगर कम है तो सिर्फ इंटरनल रेडिएशन से हो जाता है, जो 3 to 4 सिटिंग्स होते हैं, ओपीडी बेसिस पे हो जाता है। कोई एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर ये कैंसर लिम्फ नोड्स में स्प्रेड कर चुका है तो डेफिनेटली इसका ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी भी देना है और रेडिएशन भी देना है। यूजुअली हम लोग 4 साइकिल कीमोथेरेपी एंड देन फिर कंप्लीट रेडिएशन इसका इलाज है। एक्चुअली ये क्वेश्चन हमें थोड़ा पहले पूछना चाहिए था, पर अभी पूछ लेते हैं कि आपको तो इतना एक्सपीरियंस है इतने सारे कैंसर की वैरायटी में, तो अगर किसी लेडी को यूट्राइन कैंसर डायग्नोज होता है तो आपकी पर्सनल प्रैक्टिस में ये कैंसर कैसे बिहेव करता है? मतलब जब आप पहली बार काउंसिल करते होंगे पेशेंट को एंड शी इज़ वेरी नर्वस, तो मुझे वो जानना था कि आप जब काउंसिल करते हैं तो आपका यूट्राइन कैंसर की काउंसलिंग कैसी रहती है? सो यूट्राइन कैंसर की डेफिनेटली यूट्राइन कैंसर इज वन ऑफ द फ्यू गुड प्रोग्नोसिस कैंसर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप डरे नहीं, अच्छे डॉक्टर को ढूंढें और इट हैज अ बेटर करें। तो यूजुअली एक तो ये है कि जब भी हम लोग पेशेंट को डायग्नोज करते हैं तो ज़्यादातर पेशेंट्स को स्टेज 1 की ही बीमारी निकलती है। और वो क्यों है? क्योंकि यूट्राइन कैंसर या जब भी कैंसर यूट्रस की लाइनिंग में जब डेवलप होता है तो कैंसर के बहुत जल्दी ही वो ब्लीडिंग कराता है, सिम्टोमेटिक जल्दी हो जाता है, जल्दी आ जाते हैं। सही बात। तो अब ये तो हमारे ऊपर है कि हम उन सिम्टम्स को इग्नोर ना करें और हम लोग इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करें। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो डेफिनेटली कैंसर विल बी डायग्नोस्ड इन अर्ली स्टेज। यू नो द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स विल बी सिंपल। ये तो बॉडी के किसी भी कैंसर का एक हम लोग जनरल रूल है कि अगर अर्ली स्टेज में कैंसर डायग्नोस हो रहा है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सिंपल रहेंगे। क्या पता आपका कैंसर सिर्फ सर्जरी से ठीक हो जाए और उससे हमको क्योर रेट्स भी हाई है।
सेम अगर कैंसर एडवांस स्टेजेस में कोई भी कैंसर अगर डायग्नोस हो रहा है तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स भी कॉम्प्लिकेटेड है, पेशेंट को सर्जरी भी लग सकता है, रेडिएशन भी लग सकता है, कीमोथेरेपी भी लग सकता है, ऑल थ्री भी जरूरत पड़ सकती है, और फिर भी हम लोग इतना क्योर रेट्स वी कैन नॉट गारंटी, वी कैन जस्ट से दैट ओके वी कैन कंट्रोल द डिजीज and then rest we have to see how the patient behaves, we have to keep the patient under follow up. क्योंकि ये जानना ज़रूरी है दर्शकों को कि कैंसर जो है वो बड़ा फनी चीज़ है, फनी तो नहीं, मतलब एक अलग ही तरीका है कि बाय द टाइम वो सिम्टम्स क्रिएट करता है स्टेज काफ़ी एडवांस हो गया होता है, बट वी आर फॉर्चुनेट विथ यूट्राइन कैंसर कि वो पहले ही इट स्टार्ट शोइंग सम लिटिल सिम्टम्स. It is not a documented thing, but many a times I'll end up telling my patients that okay, if somebody has to get a cancer, if somebody is destined to get a cancer, then let it be uterine cancer, because generally the prognosis is good and patients do come early with symptoms, and the condition gets diagnosed early and the treatment is more successful. Right. So I also, now we are coming towards the end of the talk, and मैं जानना चाहती थी कि आपके प्रैक्टिस में तो आपने बहुत सारे यूट्राइन कैंसर्स का ट्रीटमेंट किया होगा, तो आपकी प्रैक्टिस में पेशेंट्स कैसे आते हैं, मतलब आफ्टर दिस ट्रीटमेंट हैज़ बीन डन उनकी सर्वाइवेबिलिटी या क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी रहती है? Yes. So क्वालिटी ऑफ लाइफ इसमें, क्योंकि यूट्रस एंड ओवरीज बेसिकली हम निकाल रहे हैं, तो अगर किसी पोस्ट मेनोपॉजल किसी महिला जिनको ऑलरेडी मेनोपॉज हो चुका है, जो वो मेनोपॉजल सिम्टम्स से जो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हैं, यूजुअली उनमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि दिस सर्जरी इज़ रिलेटिवली अ सिंपल सर्जरी टू टॉलरेट फॉर द बॉडी. लॉन्ग टर्म सीक्वेलें हम लोग ज़्यादातर सर्जरी के नहीं देखते हैं. रेडिएशन अगर है तो उसके थोड़े बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट विद रेगुलर कंसल्टेशंस, बाय नोइंग व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट एंड विद फ्यू चेंजेस इन देयर लाइफस्टाइल, दे कैन हैव डेफिनेटली अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ. So it's one of the definitely better ones, and there is lot of treatment and advances available on this one at least. थैंक यू सो मच डॉक्टर रिचा, वी लर्न सो मच फ्रॉम यू. लेकिन अगर हम जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स के लिए आप अपनी तरफ से कुछ भी कहना चाहते हैं रिगार्डिंग यूट्राइन कैंसर और एनीथिंग विच इज़ क्लोज टू योर हार्ट, इट विल बी एब्सोल्यूट प्लेजर टू हियर यू. So one thing that I would like to mention is that do not ignore any abnormal symptom. Do not hesitate to consult your doctor. Follow their advice, and whatever, be it any medical condition, any surgical condition, whenever it is diagnosed at an relatively early stage, the treatment outcomes are bound to be good. Better. So do not worry. Another thing I would like to mention regarding gynecological cancers is that we have very good screening methods for cervical cancer. We have pap smear HPV test for women in the reproductive age group between 35 to 65 years of age, and of course we have HPV vaccines. Richa madam has already a very good video on her YouTube channel on HPV vaccines. Please go through it. For young girls, we definitely highly recommend this HPV vaccines for prevention against cervical cancer. And so be aware of your symptoms and do not ignore them. Do not ignore. Thank you so much, Dr. Richa. It was such a pleasure talking to you. लेकिन अभी मुझे यहाँ से ही समझा कि हमको ओवेरियन कैंसर के लिए फिर से आपके पास कभी तो आना पड़ेगा. Would be my pleasure. Thank you so much. Thanks for giving so much of time to us. Thanks a lot. Thank you.